ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے چچا جان کی چھوٹی بیٹی سمرین سے شادی کرنی ہے۔ موسیٰ کی آواز پر سب کو سانپ سونگھ گیا، کیونکہ سمرین اس سے 12 سال چھوٹی تھی۔ سب جانتے تھے کہ موسیٰ کس قدر غصیلا اور سخت انسان تھا، جبکہ سمرین نازک اور چنچل سی۔ پر دادا سائیں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ جب ہی انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی اور جمعے کو ہی نکاح اور رخصتی کی حامی بھری۔ کوئی نہیں جانتا تھا موسیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا، جبکہ سمرین نے موسیٰ کے خوف سے یہ رشتہ توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ لیکن جمعے کے دن نکاح کے فوراً بعد موسیٰ اسے اپنے ساتھ لے گیا، پر بیچ راستے میں اچانک گاڑی روک کر اس نے سمرین کو۔ آفس میں ہر طرف سناٹا تھا، صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اور ہر کوئی دم سادھے ایسے بیٹھا تھا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ پچھلے کئی مہینوں سے موسیٰ انٹرپرائزز کے اکاؤنٹس میں گڑبڑ چل رہی تھی۔ جب موسیٰ کو اس بارے میں پتہ چلا تو مینیجر اور اکاؤنٹنٹ کی کمبختی آ گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے ملازمین بھی بالکل خاموش تھے۔ موسیٰ نے کہا، مجھے ابھی اور اسی وقت سارا حساب چاہیے، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک۔ 1 روپے کی غلطی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے پچھلے 6 ماہ کی ساری رپورٹ چاہیے۔ اتنا کہہ کر موسیٰ اپنے کیبن میں چلا گیا، جبکہ اکاؤنٹنٹ اور مینیجر کی جان پر بن گئی اور وہ جلدی جلدی کام میں لگ گئے۔ اکاؤنٹنٹ کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، کیونکہ جو بھی گڑبڑ ہوئی تھی اس میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ گاہے بگاہے تھوڑی تھوڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا رہا تھا، لیکن اب وہ اس ساری رقم کا حساب کہاں سے لائے؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ موسیٰ کے غصے کو جانتا تھا۔ موسیٰ اپنے ہاتھ سے دی ہوئی رقم تو معاف کر سکتا تھا، لیکن یوں دھوکہ دہی اور چوری کی گئی رقم کبھی بھی معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ الٹا وہ تو 1 روپے کا حساب لینے والا تھا، اور یہی چیز اکاؤنٹنٹ کو دہلا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی کام کے بہانے دفتر سے باہر نکلا اور بھاگ گیا۔ جب یہ خبر موسیٰ کو پہنچی تو اس نے اپنے آدمی اس اکاؤنٹنٹ کے پیچھے لگا دیے، جس کا نام یاسر تھا، لیکن یاسر ان کے ہاتھ نہیں آیا، اور اسی غصے میں موسیٰ نے اپنے آدمیوں کو بھی سزا دی۔ موسیٰ نے کہا، کسی بھی طریقے سے یاسر کو پکڑنا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک موسیٰ نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے کچھ آدمیوں کو یاسر کے گھر بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے یاسر کے گھر والوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا، تاکہ یاسر کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ خود ہی سامنے آ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب یاسر کو پتہ چلا کہ اس کی فیملی کو اس کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو وہ فوراً موسیٰ کے پاس آ گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ موسیٰ، جو اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اٹھا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا۔ ایک تو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور اوپر سے تم دفتر سے بھاگ گئے۔ سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی، موسیٰ نے غصے سے کہا۔ سزا کا سن کر یاسر گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے، اور وہ پسینے میں شرابور موسیٰ کے پاؤں پڑ گیا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، بس ایک موقع دے دیں، میں آپ کو شکایت کا دوبارہ موقع نہیں دوں گا۔ یاسر کی بات سن کر موسیٰ نے سرد لہجے میں کہا، میں غداروں کو دوسرا موقع کبھی نہیں دیتا۔ پھر اپنے خاص ملازم کو حکم دیا، اسے اٹھاؤ اور ٹارچر سیل میں بند کر دو۔ یاسر کو گھسیٹتے ہوئے ٹارچر سیل کی طرف لے جایا گیا۔ موسیٰ کے الفاظ یاسر کے دماغ میں گونج رہے تھے، میں غداروں کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ یاسر کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ٹارچر سیل میں لے جا کر اسے ایک اندھیری اور سرد جگہ پر قید کر دیا گیا۔ دوسری طرف موسیٰ اپنے کیبن میں بیٹھا غصے سے اپنے ملازمین کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غدار کی سزا
باقی ملازمین کے لیے سبق بنے گی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کمپنی کے معاملات کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے۔ کچھ دیر بعد موسیٰ نے اپنے خاص آدمی راہیل کو بلایا۔ راہیل، پچھلے 6 ماہ کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرو اور دیکھو کہ مزید کس کس نے اس معاملے میں حصہ لیا ہے۔ اگر کوئی اور ملوث پایا گیا تو اسے بھی اسی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ موسیٰ کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ راہیل نے سر ہلا کر فوراً کام شروع کر دیا۔ ٹارچر سیل میں یاسر اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ موسیٰ کے آدمی اسے سوالات کر رہے تھے۔ کتنی رقم چرائی، کہاں چھپائی، کس کس کے ساتھ مل کر یہ کام کیا؟ یاسر نے ہچکچاتے ہوئے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ میں اکیلا نہیں تھا، مینیجر حسان بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے میں میری مدد کرتا تھا۔ یہ سن کر موسیٰ کے آدمیوں نے فوراً یہ اطلاع موسیٰ کو دی۔ موسیٰ نے غصے میں حسان کو بھی بلانے کا حکم دیا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دھوکہ دینے والوں کے لیے میری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ موسیٰ نے راہیل کو حکم دیا کہ حسان کو فوراً دفتر میں طلب کیا جائے۔ کچھ گھنٹوں بعد حسان کو بھی موسیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ موسیٰ نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور کہا، تو تم بھی ملوث تھے؟ مجھے لگا تھا کہ تم میری کمپنی کے وفادار ملازمین میں سے ہو، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی غدار ہو۔ حسان نے گھبراتے ہوئے کہا، سر میری نیت خراب نہیں تھی، میں صرف حالات کا شکار تھا، میری مجبوری تھی، اسی لیے یاسر کے ساتھ مل گیا، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ موسیٰ نے غصے سے کہا، مجبوری کا بہانہ ہر غدار دیتا ہے، تم دونوں کو وہی سزا ملے گی جو تمہارے کیے کا بدلہ ہو۔ موسیٰ نے راہیل کو بلایا اور کہا، میں باہر بیٹھا ہوں اور مجھے ان کی چیخیں باہر تک سنائی دینی چاہیے۔ اتنا کہہ کر موسیٰ باہر چلا گیا۔ راہیل نے اپنے دوسرے آدمیوں کے ساتھ مل کر ان دونوں کو الیکٹرک شاک دینا شروع کیا، جس سے وہ چیخنے اور چلانے لگے اور معافی مانگنے لگے، لیکن انہیں کوئی معافی نہ ملی۔ موسیٰ نے ان دونوں کو 3 سے 4 ماہ تک اپنی قید میں رکھا اور ہر روز انہیں ٹارچر کیا۔ کبھی انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا، کبھی انہیں الیکٹرک شاک دیے اور کبھی ان پر کوڑے برسائے۔ ان 4 مہینوں میں وہ لوگ بالکل نڈھال ہو گئے تھے اور انہیں اپنے کیے پر گہرا احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ آخرکار موسیٰ نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں رہا کر دیا اور اپنی کمپنی سے بھی نکال دیا۔ آج جب موسیٰ 6 ماہ بعد حویلی پہنچا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ حویلی بہت کم آتا تھا اور زیادہ تر اپنے شہر والے گھر میں ہی رہتا تھا، کیونکہ اسے کسی قسم کی ڈسٹربنس برداشت نہیں تھی اور وہ اکیلا رہنے کا عادی تھا۔ موسیٰ ایک تنہائی پسند انسان تھا۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا کیونکہ ہر کوئی سو رہا تھا، لیکن کچن سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ موسیٰ ان آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے جب کچن میں پہنچا تو سامنے ہی سمرین کھڑی اپنے لیے چائے بناتی ہوئی نظر آئی۔ موسیٰ پہلے تو اسے بغور دیکھتا رہا۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کچن میں اس کے علاوہ بھی کوئی کھڑا ہے۔ سمرین جیسے ہی کپ اٹھانے کے لیے مڑی تو اس کی نظر موسیٰ پر پڑی اور اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی، موسیٰ نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اس کی چیخ منہ میں ہی دبا دی۔ موسیٰ نے کہا، خبردار اگر تمہاری آواز نکلی تو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ اس وقت چائے کس کے لیے بنا رہی ہو؟ سمرین نے اس کی طرف دیکھا لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ موسیٰ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سمرین نے اپنا ہاتھ موسیٰ کے ہاتھ پر رکھا اور اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ موسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ موسیٰ کا ہاتھ ہٹتے ہی سمرین نے لمبے لمبے سانس بھر کر اپنا سانس بحال کیا اور پھر بتایا کہ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی ہے
क्योंकि उसके टेस्ट हो रहे हैं और जागने के लिए वो स्ट्रॉन्ग चाय बना रही है। मूसा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो ठीक है, एक कप मेरे लिए भी बना लाओ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही मूसा किचन से बाहर निकला, समरीन ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, एक कप चाय मेरे लिए भी बना लाओ, और पैर पटकते दोबारा चाय बनाने लगी। उसकी नकल की आवाज़ मूसा के कानों में पड़ी तो वो मुस्कुराहट दबाते हुए अपने कमरे में चला गया। गहरी सांस भरते हुए उसने कहा, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। समरीन जब चाय मूसा के कमरे में लेकर गई तो वो अपने काम में मसरूफ था। समरीन ने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया तो मूसा ने कहा, आ जाओ। समरीन ने टेबल पर चाय रखी और जल्दी से जाने लगी तो मूसा ने उसे रोका और कहा, वो जग पड़ा है, उसमें पानी लाकर रख दो। समरीन ने पहले मूसा की तरफ देखा और फिर झिझकते हुए जग उठाया। वो थोड़ा नाराज और बेजारी से नीचे की तरफ बढ़ गई। किचन से पानी लाकर मूसा के कमरे में रखा और फौरन भाग गई। उसके यूं भागने पर मूसा ने सर झटका और खुद से कहा, जितनी मर्जी भाग लो, आना तो आखिर मेरे ही पास है। क्योंकि वो उसकी बचपन की मंगेतर थी, लेकिन ये बात समरीन को मालूम नहीं थी। वो जितना मूसा से दूर भागती, मूसा उतना ही उसे तंग करता, और मूसा के तंग करने पर समरीन कभी उसे कुछ कहती भी नहीं थी, क्योंकि वो मूसा से बहुत डरती थी। ये सब सोचते हुए मूसा दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया और दूसरी तरफ समरीन अपने टेस्ट की तैयारी करने लगी। रात गुजर चुकी थी और हवेली में सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। मूसा रात देर तक काम करने के बाद काफ़ी देर से सोया, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी जाग गया। वो नाश्ते के लिए नीचे आया तो सब उसे देखकर पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर खुशी से उससे मिले। दादा साईं ने अपनी बाहें फैलाईं तो मूसा मुस्कुराते हुए उनके पास गया और उनके सीने से लग गया। दादा साईं उसे सीने से लगाए कहने लगे, इतने वक्त बाद हवेली आए हो, ऐसा ना किया करो यार, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दफा तो आया करो मुझसे मिलने। दादा साईं की बात सुनकर मूसा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं हर वीकेंड पर आया करूंगा। ये सुनकर दादा साईं खुश हो गए, लेकिन वहीं एक और शख्स जो ये बात सुन रहा था गैर मामूली तौर पर बेचैन हो गया, क्योंकि मूसा की हवेली में मौजूदगी उसे उलझन में डाल देती थी। वो चाहती थी कि मूसा के साथ सामना कम से कम हो, बल्कि ना होने के बराबर हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। समरीन ने जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गई, जबकि मूसा भी नाश्ता करके अपने दफ्तर चला गया। हवेली के बाकी अफराद भी अपने कामों में मसरूफ हो गए। दिन यूं ही तेजी से गुजर रहे थे और समरीन ने बीकॉम मुकम्मल कर लिया था। उसे बिजनेस की दुनिया में आने का बहुत शौक था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी ये ख्वाहिश मूसा के होते हुए कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब उसने बीकॉम मुकम्मल किया तो सब बहुत खुश हुए। ये खबर जब मूसा तक पहुंची तो अगले ही दिन वो हवेली आया। सबसे मिलने के बाद मूसा वहीं हॉल में बैठ गया, क्योंकि सब लोग हॉल में बैठे बातों में मसरूफ थे। समरीन नीचे आने लगी तो उसने मूसा की आवाज़ सुनी और फौरन पीछे मुड़ गई। उसकी ये हरकत मूसा ने देख ली थी। समरीन की इस हरकत पर मूसा ने लब भींच लिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर दादा साईं की तरफ देखते हुए मूसा ने कहा, दादा साईं, चूंकि समरीन ने अभी बीकॉम मुकम्मल कर लिया है तो अपने वादे के मुताबिक जल्द से जल्द मेरा उसके साथ निकाह कर दें और साथ ही उसकी रुखसती भी करवा दें। ये सुनकर हवेली के सारे लोग खामोश हो गए, क्योंकि मूसा के गुस्से और सख्त तबीयत से सब लोग वाकिफ थे, जबकि समरीन एक नाजुक और चंचल लड़की थी और सब जानते थे कि वो मूसा से कितनी डरती है। लेकिन दादा साईं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही समरीन को मूसा के नाम कर दिया था। जब समरीन के वालिद एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे, अब सिर्फ उसकी माँ थी
और वो भी दादा साईं के फैसले को मानती थी। दादा साईं ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, अगले जुमे तुम्हारा निकाह समरीन के साथ कर दिया जाएगा, लेकिन रुखसती। इससे पहले कि दादा साईं अपनी बात मुकम्मल करते, मूसा ने बीच में ही टोक दिया और कहा, दादा साईं, मुझे निकाह के साथ रुखसती भी चाहिए। ये रुखसती बाद में होने का ड्रामा मैं नहीं करूंगा। मूसा की बात सुनकर दादा साईं खामोश हो गए और कहा, ठीक है, फिर जुमे तक तुम इधर ही रहो, हम शादी की तैयारी करते हैं। ये खबर जब समरीन तक पहुंची तो वो बहुत घबरा गई। फौरन दादा साईं के कमरे में गई और कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मूसा से हरगिज शादी नहीं करूंगी। दादा साईं ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और कहा, नहीं, आप कुछ भी करें, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। समरीन की ये बातें दरवाजे में खड़े मूसा ने सुन ली। गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ और समरीन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? तुम एक कदम भी कमरे से बाहर निकाल कर दिखाओ, अगर तुम्हारी टांगें ना तोड़ दी तो कहना। अपने सामने मूसा को देखकर समरीन खौफ से कपकपाने लगी। मूसा ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ा और उसे एक कमरे में कैद कर दिया। मूसा ने कहा, जुमे तक तुम यहां रहोगी, खुद को निकाह के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। अगर तुमने इनकार करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा, और ये सब करते हुए मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इतना कहकर वो चला गया और समरीन बेड पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगी। लेकिन उसके रोने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि होना तो वही था जो मूसा चाहता था। रजामंदी से ना हुआ तो ज़बरदस्ती हो जाएगा। समरीन यही सोच रही थी कि वो सारी ज़िंदगी मूसा के साथ कैसे गुजारेगी। अभी तो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था। उसके बहुत से ख्वाब थे जो अब उसे टूटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो ख्वाब कभी भी मूसा के साथ रहते हुए पूरे नहीं हो सकते थे। मूसा एक खुद पसंद इंसान था जिसको खुद के आगे कोई और नजर नहीं आता था। उसकी बात पत्थर पर लकीर होती, और जिस बात से वो एक दफ़ा इनकार कर दे तो कोई चाहे अपने उसके सामने जान ही क्यों ना दे दे, उसका इनकार इकरार में नहीं बदलता था। और यह सब बातें समरीन को डरा रही थी कि उसकी ज़िंदगी तो अब जहन्नुम बनने वाली है। समरीन अब हर वक्त खुद के मरने की दुआ करती थी। वो हर वक्त अल्लाह से एक ही दुआ करती कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे, ऐसी ज़िंदगी से तो बहुत बेहतर है, मैं इस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती, प्लीज़ अल्लाह जी मुझे मौत दे दें। वो रो रो कर बस एक ही दुआ करती रहती। दिन गुजरते गए और उसकी दुआ कबूल ना हुई। जुम्मा भी आ गया और सब्र की वजह से सब कुछ खामोशी से हुआ। जुम्मे को समरीन को तैयार करके नीचे लाया गया और निकाह शुरू हुआ। इजाबो कबूल पर सबकी मुबारकबाद के बाद मूसा ने समरीन का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठाते हुए अपने साथ ले गया। सबने मूसा को बहुत कहा कि वो इधर ही रह ले और समरीन को अपने साथ ना लेकर जाए, लेकिन मूसा ने किसी की भी ना सुनी और समरीन को अपने साथ अपने घर ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही समरीन ने मूसा की तरफ देखा जो उसे देख रहा था। समरीन ने डरते हुए पूछा, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? तो मूसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहीं उतारने के लिए। समरीन ने घबराकर इर्द गिर्द देखा, वहां कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल वीरान और सुनसान सा इलाका था। फिर मूसा की तरफ देखकर कहने लगी, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ेंगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? शादी तो आपने मुझसे ज़बरदस्ती की है, तो अब फिर आप मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? मूसा ने कहा लगाया और कहा, वाकई तुम बहुत मासूम हो, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी ये मासूमियत
मुझ पर कोई जादू नहीं चला सकी, और मैं चाह कर भी नहीं भूल सका कि कैसे एक अरसा मेरी माँ ने अजियत भरी जिंदगी गुजारी, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर समरीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ की वजह से ताई जान ने कैसे अजियत भरी जिंदगी गुजारी? तो मूसा ने गुस्से से उसके बाजू को पकड़कर कहा, मेरे बाबा, जिनसे आज मैं बात भी करना पसंद नहीं करता, उन्होंने हमेशा मेरी माँ को तुम्हारी वजह से धुतकारा। वो कभी उनको अपनी बीवी का मुकाम नहीं दे सके, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को पसंद करते थे। लेकिन जब रिश्ता आया तो तुम्हारी माँ ने जानते हुए भी मेरे बाबा की बजाय तुम्हारे बाप का नाम लिया। ये बात तुम्हारा वालिद अच्छी तरह जानता था कि मीर सुल्तान यानी कि मेरे वालिद तुम्हारी माँ को पसंद करते हैं, और जब उन्होंने इनकार किया तो तुम्हारी माँ ने ज़बरदस्ती उनसे शादी कर ली, ये कहकर कि अगर उन्होंने शादी ना की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, और साथ में मेरे बाबा की भी। बल्कि उन्होंने मेरे बाबा को मारने की कोशिश भी की थी। चचा जान बाबा की वजह से ही इनकार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मीर सुल्तान को रास्ते से हटा दूंगी, फिर तुम्हारे साथ शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सोचकर चचा जान बहुत घबरा गए और उन्होंने शादी के लिए रजामंदी दे दी। लेकिन मेरे बाबा से ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने कितने दिन अजियत में गुजारे। ना उन्हें खाने का होश था ना पीने का, वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह गए थे। लेकिन तुम्हारी माँ को ज़रा भी तरस नहीं आया। फिर दादा साईं ने ज़बरदस्ती उनकी मेरी मामा से शादी करवा दी, लेकिन वो उन्हें उनका पूरा हक ना दे सके और ना ही वो मुकाम दे पाए जो वो डिज़र्व करती थी। और ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभी थी। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसका बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। और ये सब सुनते हुए समरीन कांपने लगी और कहा, इस सब में मेरा क्या कसूर? और क्या पता जो कुछ आपको मालूम हो वो गलत हो। तो उसने कहा, नहीं, ये गलत हो ही नहीं सकता। मैंने खुद अपने कानों से मामा और बाबा को झगड़ते हुए सुना है और ये सब कुछ सुना है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी माँ को भी सज़ा मिले और वो तड़पे, इसी तरह जिस तरह मेरी माँ मेरे बाबा की मोहब्बत के लिए तड़पी है। ये कहते ही मूसा गाड़ी से निकलकर समरीन की तरफ आया और उसे गाड़ी से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। समरीन उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ कितना सुनसान है। आपने अगर मुझे नहीं रखना तो मुझे वापस घर छोड़ आएं, लेकिन मेरे साथ इस तरह ना करें। उसकी इतनी आहो बका भी मूसा के कान पर जूं तक ना रेंगी और वो ये सब सुनकर उसे अकेला छोड़कर चला गया। समरीन वहां खड़ी सहमी हुई नज़रों से इधर उधर देख रही थी। न जाने कहाँ से 3 औबाश लड़के वहां निकले और समरीन को देखकर उनकी जैसे आंखें चमक गईं और बहुत ही गुस्ताखी से समरीन को कहने लगे, क्या हुआ बीबी, कहाँ भटक रही हो? घर से भाग कर आई हो या फिर दूल्हे ने तुम्हें छोड़ दिया है? अगर कहो तो हम तुम्हें रख सकते हैं, हम तीनों तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। बस तुम्हें हम तीनों को खुश रखना पड़ेगा, वो भी एक ही टाइम में। ये कहकर वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्हें देखकर समरीन और भी डर गई और मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। वहाँ कोई होता तो मदद करता, लेकिन फिर हिम्मत करके एक तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि वो यहाँ अंधेरे में सुनसान जगह पर खड़ी नहीं रह सकती थी। वो दुल्हन के लिबास में भागती जा रही थी कि अचानक एक कार से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। वो लड़के उसे बेहोश पड़ा देखकर वहाँ से भाग गए। फिर जब होश आया तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। वो उठकर इधर उधर देखने लगी और पास खड़ी नर्स को देखते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? तो नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, एक औरत तो आपको यहाँ तक लाई है, वो बाहर ही बैठी हैं, मैं बुलाती हूँ। इतना कहकर नर्स ने बाहर बैठी खातून को बुलाया और कहा, आपकी पेशेंट को होश आ गया है। वो खातून जब कमरे में आई
तो समरीन उसकी तरफ गौर से देखने लगी कि शायद वो उसे जानती हो, लेकिन वो खातून बिल्कुल भी नहीं जानती थी। फिर उस खातून ने मुस्कुराते हुए समरीन के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी ही गाड़ी से टकराई थी, मैंने तुम्हें उठाकर अस्पताल में लेकर आई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो समरीन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। उस खातून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम घर से भाग कर आई हो, क्योंकि तुम दुल्हन के लिबास में? उस खातून ने जुमला अधूरा छोड़ा तो समरीन की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, नहीं, मैं भाग कर नहीं आई, बल्कि मेरे साथ तो उससे भी बुरा हुआ है। मेरा शौहर ही मुझे बीच रास्ते में बदले की आग में छोड़ गया, और जहां उसने छोड़ा वो एक सुनसान और वीरान इलाका था। इसीलिए भागते हुए आपकी गाड़ी से टकरा गई। ये सुनकर उस खातून को बहुत अफसोस हुआ और वो समरीन पर बहुत तरस खा गई, क्योंकि वो तो बहुत मासूम सी लड़की थी। फिर उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम वापस अपने घर जाना चाहती हो? तो समरीन ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर वहां गई तो फिर से मेरा शौहर मुझे वहां से ले जाएगा, और पता नहीं इस बार मेरे साथ क्या करेगा। अगर आपको किसी दारुल अमान या किसी और इदारे का पता है तो जहां मुझे आपने इतना एहसान किया, इतनी मेहरबानी करके मुझे वहां तक पहुंचा दें। वो उस खातून ने मुस्कुराते हुए समरीन की तरफ देखा और कहा, मैं खुद एक NGO चलाती हूं जो कि ज़रूरतमंद ख़वातीन के लिए है। तुम मेरे इदारे में आ जाओ। ये सुनकर समरीन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और कहा, क्या वाकई आप सच कह रही हैं? उस खातून ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, मेरा नाम नौशीन है और मैं तुम जैसी ही ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए इदारा चला रही हूँ, जहाँ लड़कियाँ अपनी तालीम के साथ साथ काम भी करती हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। हम उनमें से कई लड़कियों को मुनासिब रिश्ते देखकर शादी भी कराते हैं और वो लड़कियाँ अपने घरों में बहुत खुश हैं। क्या तुम हमारे इदारे का हिस्सा बनना चाहोगी? समरीन ने फौरन अज़बात में सर हिला दिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फिर वो खातून उसे अपने साथ ले गईं। जब समरीन मैम नौशीन के इदारे में पहुंची तो सबने खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया। फिर मैम नौशीन ने उसका तारुफ सबसे करवाया और उसे एक कमरे में भेज दिया, जहां पर 2 लड़कियां और भी उसकी रूममेट थीं, और वो भी बेबस और मजबूर थी। उनमें से एक लड़की ने इसको लिबास चेंज करने के लिए अपना ड्रेस दिया, जिसे थाम कर वो मुस्कुराते हुए बाथरूम में जाकर चेंज करके आई। कुछ ही दिनों में समरीन सबके साथ घुल मिल गई थी और उसी NGO को अपना घर मान लिया था। लेकिन दूसरी तरफ जब समरीन के घर वालों को पता चला तो सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और दादा साईं अलग से अपने फैसले पर पछता रहे थे। उन्हें मूसा से इस किस्म की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि वो कहानियां बताने वाले तो दादा साईं खुद थे। जब अपने माँ बाप की बार बार लड़ाई झगड़े की वजह से वो दादा साईं को तंग करने लगा तो दादा साईं ने एक दिन उसे सारी सच्चाई बता दी, जिसकी वजह से मूसा ने ये ठान ली थी कि वो अपनी चच्ची से बदला लेकर रहेगा, जिसकी वजह से उसकी माँ अजियत में रही। दादा साईं ने फौरन मूसा को हवेली में बुलाया। जब मूसा आया तो उसके चेहरे पर किसी किस्म का पछतावा नहीं था, बल्कि उसे तो अपनी चच्ची को तड़पते हुए देखकर सुकून मिल रहा था। लेकिन उसकी माँ ने आकर मूसा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाया और कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बदला लो? मैं खुश थी जैसी भी थी, लेकिन तुमने उस मासूम बच्ची के साथ कितना जुल्म किया। यही तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, तुमने तो मेरी तरबियत को ही शर्मिंदा कर दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अपनी माँ से ये सब सुनकर मूसा तो तड़प गया और कहा, नहीं माँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैंने बचपन से लेकर आज तक जब भी पापा को आप पर चिल्लाते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उसकी वजह जानने की कोशिश करता था,
और जब मुझे वजह मालूम हुई तो मैंने दादा साईं से झूठ बोलकर समरीन से मंगनी की कि मैं समरीन को बहुत पसंद करता हूं, ताकि मैं चच्ची को अजियत पहुंचा सकूं। मूसा की ये बात सुनकर उसकी मां ने मुंह फेर लिया और कहा, चले जाओ यहां से, आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मर गई तुम्हारी मां तुम्हारे लिए। इतनी तकलीफ तो मुझे तुम्हारे बाप ने नहीं दी जितनी आज तुमने दे दी है। पता नहीं बेचारी वो मासूम बच्ची कहाँ होगी और किस हाल में होगी, जिंदा भी है या मर गई। इतना कहने पर मूसा ने तड़प कर अपनी मां की तरफ देखा और कहा, ऐसा मत कहो, मैं कहीं से भी समरीन को ढूंढ लूंगा और उसे आपके पास ले आऊंगा। आप प्लीज मुझसे मुंह ना मोड़ें। लेकिन उसकी मां ने उसकी एक ना सुनी और अपने कमरे की तरफ चली गई। बाकी सब लोग भी उधर ही खड़े थे, लेकिन कोई भी मूसा को नहीं बुला रहा था। दादा साईं ने मूसा की तरफ देखते हुए कहा, आइंदा इस हवेली में आने की कोशिश भी मत करना। वो भी अपने कमरे में चले गए। चच्ची रोते हुए वहीं बैठ गई, जबकि मीर सुल्तान ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेशक इन सब में मेरी गलती है, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। तुम्हें मुझे सजा देनी चाहिए थी, ना कि उस मासूम बच्चे को। और इतना कहकर वो भी चले गए। मूसा अब पछता रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत कर दिया। काश वो ये सब करने से पहले कुछ सोच लेता या फिर उसे किसी और तरह सजा दे देता। पता नहीं मेरे जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। ये दुनिया तो वैसे ही भेड़ियों से भरी पड़ी है, और दुल्हन के लिबास में अकेली लड़की को देखकर तो उससे आगे तो मूसा सोचना भी नहीं चाहता था। वो फौरन हवेली से निकला और उसी सुनसान जगह पर आ गया जहां पर उसने समरीन को अकेला छोड़ा था। वो इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन यहां कोई भी आबादी या कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। वो वहीं घुटनों के बल बैठे हुए चिल्लाने लगा और कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। उसे तो वैसे भी अंधेरे से बहुत डर लगता था, और जब कोई गुस्से में बात करता था वो फौरन डर जाती थी। मैंने उसे तन्हे तन्हा इस वीरान जगह पर छोड़ दिया। ये सब सोचते हुए वो खुद को कोसने लगा, और फिर जल्दी ही खुद को संभालते हुए उसने राहील को फ़ोन किया और कहा कि अपने सारे आदमियों को लगा दो और समरीन को ढूंढो। जहां से मर्जी, मुझे समरीन हर हाल में चाहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद किया और खुद भी इर्द गिर्द के इलाकों में ढूंढने लगा, लेकिन समरीन को ना मिलना था ना मिली। दादा जान ने भी अपने वसाइल के जरिए समरीन का पता करवाया, लेकिन उसका कोई पता ना चला। और वहीं दूसरी तरफ समरीन ने प्राइवेट पढ़ाई शुरू कर दी, साथ साथ में बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया जो कि उस एनजीओ में आते थे, क्योंकि मैम नौशीन ने एनजीओ में एक एकेडमी बना रखी थी जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। समरीन ने भी उधर पढ़ाना शुरू कर दिया, और इस तरह उसकी ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई। वो अपने लिए भी कुछ करने लगी, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि अब वो वापस तो कभी नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिएगी। अब वो ना तो पहले की जैसे शरारती रही थी और ना ही अब वो डरती थी। उसकी अपनी रूममेट से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों बेचारी भी ऐसी ही मजबूर और बेसहारा थी। रिश्तेदारों की धुतकारी हुई। दूसरी तरफ मूसा ने ज़मीन आसमान एक कर दिया समरीन को ढूंढने में, लेकिन उसे समरीन ना मिली। आज पूरा 1 साल हो गया था समरीन को गुम हुए, लेकिन मूसा ने अभी भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी थी और उसे ढूंढ रहा था। मूसा यूं ही आंखें बंद किए सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने समरीन का मासूम चेहरा लहराया तो मूसा की बंद आंखों से एक आंसू बहता हुआ बालों में गुम हो गया। वो रो रहा था। एक मजबूत मर्द रो रहा था और साथ साथ पछता रहा था कि उसने ये सब क्यों किया। मूसा बोलता तो पहले भी कम था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही चुप हो गया। ना तो वो किसी से मिलता था और ना ही बात करता था। दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, बस यही रूटीन बनी हुई थी।
खाने पीने का भी बिल्कुल होश नहीं था, और उस दिन के बाद तो वो हवेली भी दोबारा नहीं गया, क्योंकि उसमें हवेली के लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने तय किया था कि जिस दिन समरीन मिलेगी वो उसी दिन हवेली जाएगा उसके साथ। एक दिन वो मीटिंग से आकर यूं ही अपने केबिन में बैठा काम में मसरूफ था, जब उसके पास राहील आया और कहा, सर आपको एक इनविटेशन आया है। तो मूसा ने मसरूफ अंदाज में कहा, मना कर दो, मैं नहीं जा सकता। राहील यस सर कहता हुआ वापस जाने लगा तो मूसा की नज़र इनविटेशन पर पड़ी जो किसी एनजीओ का था। उसके दिमाग में झमाका सा हुआ कि उसने समरीन को हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन उसने अभी तक किसी एनजीओ में नहीं ढूंढा था। उसने कार्ड पकड़ते हुए देखा और राहील को बुलाते हुए कहा, ठीक है, हम इस इनविटेशन पर ज़रूर जाएंगे, तैयार रहना। राहील हामी सर हिलाता हुआ बाहर चला गया और मूसा आंखें बंद किए कुछ सोचने लगा और कहा, काश तुम भी यहाँ हो और मैं तुम्हें वापस ले आऊं। एनजीओ वाले अक्सर ही मूसा को इनवाइट करते थे, क्योंकि वो बहुत सी एनजीओज़ का डोनर था और मैम नौशीन की एनजीओ को भी वो काफ़ी रकम डोनेट करता था। मैम नौशीन उसे अपने हर फंक्शन में बुलाती थी, जिसमें कभी तो मूसा चला जाता और कभी काम की मसरूफियत की वजह से ना जा पाता। आज भी उसका कहीं जाने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके दिल में जैसे एक उम्मीद सी जागी थी कि शायद समरीन का कहीं पता चल जाए, और अगर इस एनजीओ में ना भी हुई तो मैम नौशीन से कहकर बाकी दूसरी एनजीओज़ में पता करवाएगा। यही सोचते हुए वो शाम को तैयार हुआ और एनजीओ पहुंच गया। इधर उधर देखने लगा। मूसा ने एनजीओ की इमारत के बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस ली और फिर अंदर कदम रखा। वो तकरीबन हर कमरे की तरफ नज़र दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। वो सोच रहा था शायद वो यहाँ आकर कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा रहा है, लेकिन फिर जैसे ही वो मैम नौशीन के दफ्तर के करीब पहुंचा, उसकी नज़रें मैम नौशीन पर जाकर रुक गईं, जो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। तो मूसा ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और बैठ गया। मैम नौशीन ने कहा, आप इधर ही बैठना पसंद करेंगे या वहाँ हॉल में मेरे साथ चलेंगे जहाँ फंक्शन हो रहा है? मूसा ने कहा, नहीं, मैं हॉल में जाना चाहूँगा जहाँ पर फंक्शन का अरेंजमेंट है, क्योंकि मूसा जिस मकसद के लिए आया था वो दफ्तर में बैठकर बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता था। इसी वजह से वो फंक्शन अटेंड करने के इरादे से हॉल में चला गया और वहाँ जाकर सब लड़कियों पर नज़र डालने लगा कि शायद उसे कहीं वो भी मिल जाए जिसकी तलाश में वो यहाँ आया है। लेकिन उसे समरीन कहीं भी नज़र नहीं आई। वो मायूस होकर वहीं एक साइड पर सोफे पर बैठ गया और फिर फंक्शन शुरू हो गया। मूसा कुछ देर तो वहाँ बैठा इधर उधर नज़र दौड़ाता रहा, लेकिन जब उसे समरीन नज़र ना आई तो उसने खड़े होकर मैम नौशीन को मुखातिब किया और उसे लेकर एक साइड पर चला गया। अपनी जेब से चेक बुक निकाली और उस पर साइन करके उसमें 10 लाख का अमाउंट लिखकर मैम नौशीन को थमा दिया। मैम नौशीन चेक देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी तो मूसा ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैम नौशीन हैरान होते हुए मूसा की तरफ देखने लगी और कहा, आपको मुझसे किस किस्म की मदद चाहिए? आप तो खुद सबकी मदद करते हैं। तो मूसा ने संजीदा होकर मैम नौशीन की तरफ देखा और कहा, मैं एक लड़की को तलाश कर रहा हूँ जो पिछले 1 साल से मिल नहीं रही। मैं आज भी यहाँ इसी मकसद के लिए आया था कि शायद वो यहाँ हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो क्या आप मुझे अपने जानने वाली बाकी एनजीओ से पता करवा कर दे सकती हैं कि वो वहाँ है या नहीं? मैम नौशीन ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, क्या नाम है उस लड़की का? क्या उसकी कोई तस्वीर वगैरह है? मूसा ने अपने मोबाइल पर तस्वीर निकाली और मैम नौशीन को दिखाई और कहा, इसका नाम समरीन है। तस्वीर देखकर और नाम सुनकर मैम नौशीन तो हैरान ही रह गई और साथ ही परेशान भी हो गई,
کیونکہ وہ تو اسی ادارے میں رہتی ہے، لیکن واپس بالکل نہیں جانا چاہتی، اور میم نوشین اس کے ساتھ بات کرنے یا زبردستی کر سکتی تھی اور نہ ہی زبردستی ہونے دے سکتی تھی، لیکن موسیٰ جیسے پاورفل آدمی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر موسیٰ نے کہا، میم کیا ہوا؟ آپ میری مدد نہیں کر سکتی؟ یا پھر آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ میم نوشین نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور کہا، نہیں، میں اس کا پتہ آپ کو کروا دوں گی، میرے ادارے میں تو ایسی کوئی لڑکی نہیں، آپ یہ تصویر مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ موسیٰ نے فوراً ہی تصویر واٹس ایپ کر دی اور خود وہاں سے جانے لگا، لیکن جاتے ہوئے جب وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو اس کی نظر اچانک سے سامنے والے کمرے سے نکلتی لڑکی پر پڑی، اور وہیں پر موسیٰ ساکت ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں سمرین ہی تھی، جو کہ دوسری لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے فنکشن کی طرف جا رہی تھی۔ موسیٰ نے سمرین کو دیکھتے ہی قدم روک دیے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ وہ کئی مہینوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اور وہ آخرکار آج مل ہی گئی۔ سمرین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن اور حیرانگی کا ایک واضح اثر تھا۔ وہ سمرین کے قریب جا کر رکا اور دھیرے سے اس کا نام پکارا، سمرین۔ سمرین نے پلٹ کر موسیٰ کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ آپ یہاں؟ اس کی آواز میں ایک لرزش سی تھی۔ سمرین کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسے موسیٰ کی موجودگی سے تکلیف اور خوف دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ موسیٰ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا سمرین، 1 سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اور تم یہاں ہو۔ اس کی آواز میں غم اور پچھتاوا تھا جو وہ اپنے دل میں کئی دنوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ کیوں ڈھونڈا آپ نے مجھے؟ میں نے کہا تھا مجھے ڈھونڈیں۔ آپ چھوڑ تو گئے تھے مجھے ایک سنسان اور ویران علاقے میں، پھر ڈھونڈنے کی کیا تک بنتی تھی؟ چلے جائیں یہاں سے، میں نے کہیں نہیں جانا، نہ آپ کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، اور اب یہی میری دنیا ہے اور یہی میرا گھر۔ اس لیے برائے مہربانی نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی میں نے جانا ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ اتنا کہہ کر سمرین چپ کر گئی۔ موسیٰ تو اس کی بہادری پر حیران تھا، جو بغیر جھجکے اور بغیر ڈرے بات کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، پہلے تو وہ ایک دبوسی لڑکی تھی جو موسیٰ سے بات تو کیا اس کے سامنے بھی آنے سے ڈرتی تھی۔ موسیٰ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار پچھتاوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غلطی کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سمرین کو واپس لا سکے، لیکن سمرین کی آنکھوں میں جو پختگی تھی وہ اس کی روح تک پہنچ رہی تھی۔ موسیٰ نے ایک لمحے کے لیے سر جھکا لیا اور پھر آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں جو تکلیف دی ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ سمرین تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر بغیر مڑ کر دیکھے آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی آواز موسیٰ کے دل میں گونج رہی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست کو برداشت کر رہا ہو۔ موسیٰ ایک نیا آغاز کرنا چاہتا تھا، جہاں وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر سکے، لیکن اس کا راستہ سمرین کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ سمرین چلی گئی اور وہ کتنی ہی دیر اس راہ کو دیکھتا رہا جہاں سے سمرین گئی تھی، اور پھر گہری سانس بھر کر NGO سے باہر آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سمرین کو واپس لانا چاہتا تھا، لیکن سمرین واپس آنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اور نہ ہی وہ موسیٰ کو معاف کرنے کی روادار تھی۔ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، واپس تو وہ سمرین کو لا کر ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ پہلے اسے بدلہ لینے کے لیے زبردستی کی تھی، لیکن اب اسے دوبارہ سے پانے کے لیے زبردستی کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا۔ اب بس
मुझे उसकी एनजीओ से बाहर निकलने का इंतज़ार रहेगा। जिस दिन वो बाहर निकली उसी दिन मैं उसे इस घर में ले आऊँगा। और फिर मूसा उस एनजीओ पर नज़र रखने लगा। उसे 1 महीना हो गया था। रोज़ वो एनजीओ के गेट के साथ एक कोने में खड़ा रहता। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन समरीन एनजीओ से बाहर आई, क्योंकि उसका पेपर था और वो पेपर देने के लिए जा रही थी। उसने एनजीओ से निकलकर एक रिक्शा करवाया और उसमें बैठकर जाने लगी। लेकिन अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसके रिक्शे के आगे किसी ने गाड़ी खड़ी की, जिसे देखकर समरीन घबरा गई। उसे पता था कि ये गाड़ी किसकी है। समरीन जल्दी से रिक्शे से निकली और उसने भागना शुरू कर दिया। लेकिन कहाँ तक भाग सकती थी? आखिरकार वो मूसा के हाथ आ ही गई। मूसा उसे खींचते हुए अपने साथ गाड़ी में ले गया और गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। समरीन ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़वाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और मूसा समरीन को लेकर अपने घर आ गया। उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए ज़बरदस्ती अपने कमरे में लाया और बेड पर बिठाया। लेकिन समरीन जल्दी से उठी और कहा, मुझे नहीं रहना। मैं आपके लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन आप मुझे वहाँ वीराने में छोड़कर आए थे। तो मूसा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और खुद पर जब्त करते हुए कहा, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसकी सज़ा भी भुगत रहा हूँ। जिस दिन से तुम्हें वहाँ छोड़ा है उस दिन से ना तो मैं सुकून से सो सका हूँ और ना ही मेरी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ रही। तुम्हें ढूंढने के लिए गली गली भटका हूँ, लेकिन अब जबकि तुम मिल चुकी हो, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। समरीन ने गुस्से में उठकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, सोचो, अगर मैं वहाँ से ना भागती और उस आंटी की कार से ना टकराती तो मेरा क्या होता? जाने कितने ही भेड़िए मुझसे फ़ायदा उठा लेते और कितने ही मुझे रौंद कर यूं ही फेंक देते। ये सब सुनकर मूसा तड़प गया और उसे अपने हिसार में लेने लगा। लेकिन समरीन ने उसको झटक दिया और उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया और कहा, खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो। मूसा उसको देखते हुए उसके पैरों में बैठ गया और कहने लगा, बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। समरीन ने हैरत से उस शख्स को देखा जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका था और समरीन के कदमों में ही बैठ गया था। लेकिन समरीन ने उसे देखते हुए कहा, तुम ही कहते हो कि किसी को दूसरा मौका नहीं देना चाहिए कि वो दोबारा ही ना डस ले। ये सुनकर मूसा ने सर उठाया और कहा, नहीं, मैं गलत था। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए जो सच में पछतावे की भट्टी में जल रहा हो। समरीन कितनी ही देर उसे देखती रही जो उसके पैरों में बैठा आंसू बहा रहा था। थक हार कर समरीन ने एक गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई। फिर कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे वहीं छोड़ दें जहां से मुझे लेकर आए थे। लेकिन मूसा उसे दोबारा से एनजीओ में छोड़ने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं था। कहने लगा, तुम यहीं रहोगी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे सामने आऊंगा। बस तुम अब और कहीं नहीं जाओगी। समरीन कितनी ही देर सोचती रही। उसे पता था कि मूसा किसी भी तरह उसे दोबारा उस एनजीओ में नहीं भेजेगा। इसलिए समरीन ने हार मानते हुए मूसा की बात मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने ज़रा भी मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं फ़ौरन यहाँ से चली जाऊंगी। मूसा ने जल्दी से उठकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। इतना कहकर मूसा अपने आंसू साफ करते हुए बाहर की तरफ चला गया। और फिर उस दिन के बाद ना तो मूसा ने कभी उसे तंग किया और उसके सामने कभी कभार ही आता था, और जब कभी समरीन का सामना होता तो वो फ़ौरन वहाँ से हट जाता ताकि समरीन घबरा ना जाए या फिर यहाँ से चली ना जाए। समरीन ने जब देखा कि मूसा उसका हर तरह से ख्याल रख रहा है और उसे बिल्कुल भी डरा धमका नहीं रहा और ना ही तंग कर रहा है,
तो उसके दिल में भी मूसा के लिए नरम गोशा पैदा होने लगा। फिर एक रात वो मूसा के पास आई। मूसा उसे देखकर हैरान रह गया। समरीन ने उसे कहा, मुझे वाकई लगता है कि आप बदल गए हैं। आपका ये रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। ये सुनकर मूसा बहुत खुश हुआ और कहा, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। समरीन ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और बिजनेस भी करना चाहती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अगर आप मेरी इस ख्वाहिश में रुकावट नहीं बनेंगे तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। तो मूसा मुस्कुराने लगा और कहा, मैं तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर समरीन मुस्कुराने लगी और मूसा ने उसे अपने हिसार में ले लिया। फिर उसे लेकर हवेली गया। हवेली वाले, जो कि समरीन के मिलने की उम्मीद बिल्कुल खो चुके थे, उसको अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। उन सब ने समरीन से माफ़ी मांगी। समरीन ने माफ़ कर दिया और मूसा के साथ वहाँ एक दिन रहने के बाद वापस आ गई और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अब एक कामयाब बिजनेस वूमेन थी और उन सब में मूसा ने उसका हर लिहाज से साथ दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।